فلم دا کرونیکلز آف ریڈک ایک مشہور سائنس فکشن اور ایکشن فلم ہے جو سال 2004 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے مرکزی کردار ون ڈیزل ہے جو خطرناک اور طاقتور کردار رچرڈ بی ریڈک کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ فلم دراصل پچ بلیک کا سیکوئل ہے۔ اس کہانی میں ہم ایک ایسے مستقبل کی دنیا دکھائی جاتی ہے جہاں مختلف سیاروں اور کہکشاؤں میں انسان بستے ہیں اور طاقتور سلطنتیں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں۔ فلم کی کہانی ایک خطرناک جنگجو ریڈک کے گرد گھومتی ہے جو ہمیشہ دشمنوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بار اسے ایک ایسی خوفناک سلطنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے نیکرومانگرز کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ پوری کائنات کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور ہر اس سیارے کو تباہ کر دیتے ہیں جو ان کے سامنے جھکنے سے انکار کرے۔ کہانی میں ایک پیش گوئی بھی موجود ہے جس کے مطابق فریان نسل کا ایک شخص ہی ان ظالم حکمرانوں کو شکست دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریڈک اس پوری فلم کا سب سے اہم کردار بن جاتا ہے۔ فلم میں زبردست فیوچرسٹک ٹیکنالوجی، ایکشن سینز، بڑے خلائی جہاز اور زبردست لڑائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس فلم کو ایک شاندار سائنس فکشن ایڈونچر بنا دیتی ہیں۔ کہانی مستقبل کی ایک ایسی کائنات میں شروع ہوتی ہے جہاں مختلف سیاروں اور کہکشاؤں میں انسانوں نے آبادیاں قائم کر لی ہیں، مگر اس وسیع کائنات میں امن بہت کم ہے۔ مختلف طاقتور سلطنتیں اور جنگجو گروہ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے لڑتے رہتے ہیں۔ اسی کائنات میں ایک نام ایسا ہے جس سے زیادہ تر لوگ خوفزدہ رہتے ہیں۔ ریڈک ایک خطرناک مجرم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کئی خطرناک جیلوں سے فرار ہو چکا ہے، درجنوں دشمنوں کو شکست دے چکا ہے اور انتہائی مشکل حالات میں بھی زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھی غیر معمولی ہیں جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں۔ ریڈک اس وقت کائنات کے انتہائی دور دراز برفیلے سیارے پر چھپا ہوا ہے۔ وہ تنہائی میں رہ رہا ہے کیونکہ پوری کہکشاں میں اس کے سر کی قیمت مقرر کی جا چکی ہے۔ بہت سے باؤنٹی ہنٹرز اسے پکڑنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں۔ برفیلے پہاڑوں اور یکبستہ میدانوں کے درمیان ریڈک اکیلا زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی فوج ہے اور نہ ہی کوئی ساتھی، لیکن وہ اپنے ماحول کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ دشمن اس تک پہنچ نہ سکے، لیکن زیادہ عرصے تک کوئی بھی ریڈک سے دور نہیں رہ سکتا۔ ایک دن ایک طاقتور باؤنٹی ہنٹر جس کا نام ٹامز ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سیارے پر پہنچ جاتا ہے۔ ان کا مقصد واضح ہے، ریڈک کو زندہ یا مردہ پکڑنا۔ ٹامز اور اس کے ساتھی جدید ہتھیاروں اور گاڑیوں کے ساتھ برفیلے علاقے میں اترتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ریڈک کو اچانک گھیر لیا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ریڈک پہلے ہی ان کی موجودگی محسوس کر چکا ہوتا ہے۔ وہ برف اور پہاڑوں کے درمیان ایسی چالاکی سے حرکت کرتا ہے کہ شکاری خود شکار بن جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ٹامز کے ساتھی غائب ہونے لگتے ہیں۔ ریڈک اپنی رفتار، طاقت اور ذہانت سے ان پر حملہ کرتا ہے۔ جلد ہی واضح ہو جاتا ہے کہ شکار آسان نہیں ہے۔ بالآخر ریڈک اور ٹامز آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہوتی ہے۔ ریڈک اپنی طاقت سے ٹامز کو قابو میں لے لیتا ہے، مگر اسے مارنے کے بجائے وہ اس سے معلومات حاصل کرتا ہے۔ ریڈک پوچھتا ہے کہ اسے کس نے بھیجا ہے۔ ٹامز بتاتا ہے کہ کسی نے بڑی رقم دے کر باؤنٹی ہنٹرز کو ریڈک کے پیچھے بھیجا ہے۔ یہ سن کر ریڈک حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ آخر کون اسے اس قدر شدت سے تلاش کر رہا ہے۔ ریڈک کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب ایک ہی شخص دے سکتا ہے، امام وہی شخص ہے جس سے ریڈک کی ملاقات پہلے ایک اور مہم میں ہوئی تھی۔ وہ ایک عقل مند اور نیک دل انسان ہے جس نے کبھی ریڈک کی مدد کی تھی۔ ریڈک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ امام کو تلاش کرے گا۔ وہ ایک خلائی جہاز حاصل کرتا ہے اور اس سیارے سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی منزل ہے ہیلیون پرائم نامی سیارہ جہاں امام رہتا ہے۔
हेलियोन प्राइम एक शानदार और तरक्की याफ्ता सैयारा है। यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के लोग रहते हैं। बुलंद बाला इमारतें, जदीद टेक्नोलॉजी और रंग बिरंगी सकाफतें इस सैयारे को मुनफरिद बनाती हैं। मगर इस सैयारे में भी ख़तरा मंडला रहा है। यहाँ एक ताकतवर मजहबी सल्तनत के बारे में खबरें फैल रही हैं, जिसे नेक्रोमोंगर्स कहा जाता है। ये खौफनाक फौज है जो एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक सफ़र करती है। इनका मकसद बहुत अजीब, वो हर उस दुनिया को फतह करते हैं जहाँ वो पहुँचते हैं। लोगों को दो ही रास्ते देते हैं, या तो उनके मज़हब को कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये फ़ौज कहकशां में तेज़ी से फैल रही है और बहुत से सैयारे इनके हाथों तबाह हो चुके हैं। रिडिक हेलियोन प्राइम पहुँच जाता है और इमाम को ढूंढ लेता है। इमाम अब एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके ख़ानदान वाले भी उसके साथ हैं। जब वो रिडिक को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि रिडिक दोबारा उसके सामने आएगा। रिडिक सीधा सवाल करता है, क्या तुमने बाउंटी हंटर्स को मेरे पीछे भेजा? इमाम कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर वो एतराफ़ करता है कि हाँ, उसने ही ऐसा किया था। रिडिक गुस्से में आ जाता है, मगर इमाम उसे समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक बहुत बड़ा ख़तरा आने वाला है और सिर्फ रिडिक ही उसका मुकाबला कर सकता है। ये ख़तरा है नेक्रोमोंगर्स, एक कदीम पेशन गोई इमाम करता है। इमाम बताता है नेक्रोमोंगर्स की सल्तनत को सिर्फ एक शख्स ख़त्म कर सकता है और वो शख्स फरियान नस्ल से होगा। रिडिक चौंक जाता है क्योंकि वो खुद फरियान है। इमाम बताता है कि नेक्रोमोंगर्स के लीडर लॉर्ड मार्शल ने इस पेशगोई के बारे में सुन रखा है, इसलिए उसने फरियान नस्ल को ख़त्म करने का हुक्म दिया था। तकरीबन तमाम फरियान मारे जा चुके हैं, लेकिन रिडिक बच गया। इसका मतलब ये है कि वही शख्स वो हो सकता है जो नेक्रोमोंगर्स की ताकत को ख़त्म करे। रिडिक को ये सब सुनकर यकीन नहीं आता। वो खुद को कोई निजात दहिंदा नहीं समझता, उसके लिए सब सिर्फ कहानियाँ हैं। मगर इमाम जानता है कि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। इसी दौरान हेलियोन प्राइम के आसमान में अजीब सरगर्मी शुरू होती है। बहुत बड़ी खलाई जंगी कश्तियाँ सैयारे के मैदान में जाहिर होने लगती हैं। ये नेक्रोमोंगर्स का बेड़ा है। उनकी फौज हजारों जंगजू पर मुश्तमिल है और उनके जहाज आसमान को ढांप लेते हैं। सैयारे के हुक्मरानों को फौरन एहसास हो जाता है कि जंग शुरू होने वाली है। शहर में खौफ फैल जाता है। लोग समझ जाते हैं कि नेक्रोमोंगर्स की आमद का मतलब तबाही है। रिडिक इस मंजर को देखता है और समझ जाता है कि इमाम जो कुछ कह रहा था वो शायद सच है। एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। ये आम जहाज़ नहीं थे, ये नेक्रोमोंगर्स की असीम जंगी बेड़े का हिस्सा होते हैं। ये फौज कायनात में अपनी बेरहम फतूहात के लिए मशहूर है। जहाँ पे जाते हैं वहाँ दो ही रास्ते होते हैं, या उनके मज़हब को कबूल कर लो या मौत का सामना करो। हेलियोन प्राइम के लोग आसमान की तरफ देखते हैं और खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ ही देर में सैकड़ों छोटे जंगी जहाज़ सैयारे की तरफ उतरना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगते हैं। लोग अपने घरों से निकलकर पनाहगाहों की तरफ भागने लगते हैं। इसी सैयारे पर एक पुरअसरार शख्सियत भी मौजूद है जिसका नाम एरियन है। वो एलिमेंटल नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। ये कदीम और ताकतवर मखलूक है जो कायनात में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करती है। एरियन को पहले ही मालूम था नेक्रोमोंगर्स जल्द या बदेर हेलियोन प्राइम तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए उसने इमाम को कहा था कि रिडिक को यहाँ बुलाया जाए। वो जानती है कि रिडिक आम इंसान नहीं है। रिडिक फरियान नस्ल से ताल्लुक़ रखता है और कदीम पेशगोई के मुताबिक यही वो शख्स हो सकता है जो नेक्रोमोंगर्स के लीडर को शिकस्त दे सकता है। नेक्रोमोंगर्स हमला आवर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही लम्हों में हेलियोन प्राइम के आसमान में धमाके होने लगते हैं। नेक्रोमोंगर्स के जहाज़ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फौजियों को उतारने लगते हैं। ये फौजी सिया जर्रा बख्तर पहने होते हैं और उनके हथियार इंतहाई जदीद होते हैं। वो ज़मीन पर उतरते ही हमला शुरू कर देते हैं। लोगों को जमा किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि वो नेक्रोमोंगर सल्तनत को कबूल करें। जो लोग इनकार करते हैं उन्हें फ़ौरन मार दिया जाता है। शहर में अफरा तफरी फैल जाती है। हर तरफ चीखों पुकार और भाग दौड़ शुरू हो जाती है।
नेक्रोमोंगर्स का सबसे ताकतवर और खौफनाक रहनुमा लॉर्ड मार्शल है। वो इस पूरी फौज का हुक्मरान है। कहा जाता है कि उसने पूरे स्टार दुनिया का सफ़र किया था, जहाँ उसे गैर मामूली ताकतें हासिल हुई। उसकी रफ्तार इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज़ है और वो जंग में तकरीबन नाकाबिले शिकस्त समझा जाता है। उसके मानने वाले उसे सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक मुक़द्दस शख्सियत समझते हैं। लॉर्ड मार्शल अपने अजीम जंगी जहाज़ में बैठा हेलियन प्राइम पर होने वाली तबाही को देख रहा होता है। उसके लिए ये सब सिर्फ एक और फतह है। रिडिक शहर में फैलती हुई तबाही को देखता है। वो आमतौर पर दूसरों के मसाइल में नहीं पड़ता, मगर यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। नेक्रोमोंगर्स का हमला सिर्फ हेलियन प्राइम तक महदूद नहीं रहेगा। अगर ये फौज पूरी कायनात को फतह करती रही तो कहीं भी छुपना मुमकिन नहीं रहेगा। इसी दौरान रिडिक की मुलाकात एक और अहम किरदार से होती है, जिसका नाम डेम वाकू है। वो नेक्रोमोंगर्स के लिए एक आला अफसर की बीवी है। डेम वाकू एक चालाक और ताकत की ख्वाहिश रखने वाली औरत है। वो जानती है कि रिडिक आम इंसान नहीं है। वो रिडिक को बताती है कि लॉर्ड मार्शल फरियान से डरता है, इसीलिए उसने सालों पहले फरियान सैयारे को तबाह कर दिया था। हेलियन प्राइम में जंग के दौरान रिडिक को नेक्रोमोंगर्स फौजियों का सामना करना पड़ता है। वो उनसे लड़ता है और कई दुश्मनों को शिकस्त देता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। बिला आखिर उसे काबू कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। रिडिक को नेक्रोमोंगर्स के सामने पेश किया जाता है। लॉर्ड मार्शल के सिपाही उससे पूछते हैं कि वो कौन है। जब उन्हें पता चलता है कि वो फरियान है तो वो हैरान रह जाते हैं। लॉर्ड मार्शल को फौरन उसकी इत्तला दी जाती है। नेक्रोमोंगर्स के कानून के मुताबिक अगर कोई दुश्मन ताकतवर हो तो उसे दो रास्ते दिए जाते हैं, या तो वो नेक्रोमोंगर्स बन जाए या फिर उसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन रिडिक के लिए एक तीसरा रास्ता मुंतखब किया जाता है। उसे एक इंतहाई ख़तरनाक सैयारे पर भेज दिया जाता है, जिसका नाम सिरिमेटोरिया है। ये खौफनाक जेल सैयारा है। यहाँ का माहौल इतना शदीद है कि दिन के वक्त दर्जा हरारत इतना बढ़ जाता है कि इंसान चंद सेकंड में चल सकता है। यहाँ सिर्फ वो कैदी रखे जाते हैं जो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। नेक्रोमोंगर्स समझते हैं कि अगर रिडिक वहाँ भेज दिया जाए तो कभी वापस नहीं आ सकेगा। रिडिक को जंजीरों में जकड़कर एक जहाज़ में डाल दिया जाता है। उसके साथ कई दूसरे कैदी भी होते हैं और इन सब को सिरिमेटोरिया भेजा जाता है। जहाज़ खला में सफ़र करता हुआ उस खतरनाक सैयारे की तरफ बढ़ता है। रिडिक खामोश बैठा रहता है, मगर उसकी आंखों में वही आज़म नज़र आता है जो हमेशा रहा है। वो जानता है कि वो जिंदा रहने के लिए पैदा हुआ है और कोई भी जेल उसे हमेशा के लिए कैद नहीं रख सकती। खलाई जहाज़ कई घंटों के सफ़र के बाद सिरिमेटोरिया पहुंच जाता है। ये सैयारा आम दुनिया जैसा नहीं है। इसकी फ़िज़ा और मौसम इंतहाई ख़तरनाक है। सिरिमेटोरिया की सबसे बड़ी खुसूसियत इसका दर्जा हरारत है। जब इस सैयारे पर सूरज तुलू होता है तो गर्मी इतनी शदीद हो जाती है कि इंसान चंद सेकंड में चल सकता है, और जब रात होती है तो दर्जा हरारत अचानक इंतहाई सर्द हो जाता है। इसी वजह से यह एक ख़ास जेल बनाई गई है जहां कायनात के सबसे ख़तरनाक मुजरिमों को कैद किया जाता है। जेल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि कैदी बाहर निकलकर जिंदा न रह सकें। खलाई जहाज़ जेल के करीब उतरता है और कैदियों को जंजीरों में बांधकर बाहर निकाला जाता है। रिडिक भी इन कैदियों में शामिल होता है। जेल के मुहाफिज कैदियों को सख्ती से काबू में रखते हैं। उनके पास जदीद हथियार और निगरानी का मुकम्मल निज़ाम मौजूद होता है। कैदियों को लंबी सुरंगों और धाती रास्तों से गुजार कर जेल के अंदर ले जाया जाता है। ये जगह तारीक, सर्द और खौफनाक है। हर तरफ सख्त सिक्योरिटी और मुसल्लह गार्ड्स मौजूद हैं। सिरिमेटोरिया की जेल का एक ख़ास निज़ाम है। जेल को इस तरह बनाया गया है कि दिन के वक्त सूरज की तपिश पूरी इमारत को गर्म कर देती है, इसीलिए कैदियों को ज़्यादातर वक्त अंदर रखा जाता है। अगर कोई कैदी फरार होने की कोशिश करे तो उसे जेल से बाहर के मैदान में छोड़ दिया जाता है, जहां सूरज की गर्मी उसे चंद लम्हों में ख़त्म कर देती है। इसीलिए यहाँ से फरार होना तकरीबन नामुमकिन
रिडिक जेल में दूसरे कैदियों को देखता है। ये सब मुख्तलिफ सैयारों के खतरनाक मुजरिम हैं। कुछ कैदी सालों से यहाँ कैद हैं और उन्हें यकीन है कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं निकल सकता। मगर रिडिक का जहन पहले ही काम करना शुरू कर देता है। वो जेल के ढांचे, गार्ड्स की नक्लो हरकत और सिक्योरिटी के निज़ाम का जायज़ा लेने लगता है। इसी दौरान एक और खलाई जहाज़ सिरिमेटोरिया पर उतरता है। इस जहाज़ में वही बाउंटी हंटर होता है जिससे रिडिक पहले लड़ चुका था। इसका नाम है टूम्स। टूम्स अभी भी रिडिक को पकड़कर बड़ी रकम हासिल करना चाहता है। वो जेल के हुक्काम से मुआहदा करता है कि अगर वो रिडिक को उसके हवाले कर दें तो वो उन्हें इनाम देगा। जेल के हुक्काम इस बात पर गौर करने लगते हैं। रिडिक को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके खिलाफ एक और मंसूबा बन रहा है। जेल में मौजूद गार्ड्स उस पर नज़र रख रहे हैं और अब बाउंटी हंटर भी उसे दोबारा पकड़ने के लिए पहुंच चुका है। रिडिक समझ जाता है कि अगर वो यहाँ ज़्यादा देर रहा तो सूरत हाल उसके खिलाफ हो जाएगी, इसलिए वो फरार का मंसूबा बनाने लगता है। रिडिक जेल के अंदर एक मौका तलाश करता है। एक दिन जब कैदियों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल किया जा रहा होता है तो गार्ड्स की तवज्जो हटने का इंतज़ार करता है। जैसे ही मौका मिलता है वो अचानक हरकत करता है। अपनी जंजीरों को इस्तेमाल करते हुए गार्ड को काबू में ले लेता है और उसका हथियार इस्तेमाल कर लेता है। जेल में फ़ौरन अलार्म बजने लगता है। गार्ड्स हर तरफ दौड़ कर आते हैं। रिडिक तेज़ी से जेल के अंदरूनी रास्तों की तरफ बढ़ता है, मगर इस दौरान एक और ख़तरा होने वाला होता है। जेल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां सूरज की तपिश बराह रास्त पहुंचती है। अगर रिडिक जल्दी बाहर ना निकला तो वो शदीद गर्मी का शिकार हो सकता है। वो तेज़ी से जेल के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता है। इसी दौरान उसका सामने कई गार्ड से होता है और वो उन्हें शिकस्त देकर आगे बढ़ता है। जेल में पैदा होने वाली अफरा तफरी की वजह से दूसरे कैदी भी हंगामा शुरू कर देते हैं। कुछ कैदी फरार की कोशिश करते हैं, कुछ गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। पूरे जेल में एक तरह की बगावत फैल जाती है। रिडिक इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाता है और आगे बढ़ता रहता है। मगर जेल के बाहर सिर्फ सूरज की गर्मी ही खतरा नहीं है। सेरिमेटोरिया के मैदानों में खतरनाक मखलूक़ात भी रहती हैं जो कैदियों को शिकार बना लेती हैं। इसीलिए ज़्यादातर कैदी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते। मगर रिडिक के पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे इस जहन्नुम जैसे सैयारे से निकलना ही होगा। लेकिन इस सैयारे का सबसे बड़ा खतरा अभी सामने आने वाला है। सिरिमेटोरिया पर सूरज तुलू होने वाला है। जैसे ही सूरज उफ़क़ के करीब पहुंचता है पूरा सैयारा आहिस्ता आहिस्ता शदीद गर्मी में डूबने लगता है। जेल के कुछ हिस्से सूरज की बराह रास्त रोशनी में आ जाते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें ज़मीन को छूती हैं दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये गर्मी इतनी शदीद होती है कि चंद लम्हों में इंसान की जिल्द जल सकती है। इसीलिए जेल के कैदी आमतौर पर दिन के वक्त बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते। मगर रिडिक के पास वक्त कम है। अगर वो जल्दी ना निकला तो वो जेल में दोबारा पकड़ा जा सकता है। इसी दौरान बाउंटी हंटर टूम्स भी जेल के अंदर दाखिल हो चुका होता है। वो अपने साथियों के साथ रिडिक को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। टूम्स के लिए ये सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि बहुत बड़ी रकम हासिल करने का मौका है। वो जेल के हुक्काम से ताउन हासिल करके रिडिक का पीछा करने लगता है। रिडिक को जल्द ही एहसास हो जाता है कि टूम्स दोबारा उसके पीछे आ चुका है। रिडिक जेल के अंदरूनी रास्तों से गुजरता हुआ एक ऐसे हिस्से तक पहुंच जाता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। ये रास्ता एक लंबी सुरंग के जरिए सैयारे के खुले मैदानों तक पहुंचाता है। मगर बाहर का माहौल इंतहाई खतरनाक है। सूरज तेजी से ऊपर आ रहा है और ज़मीन गर्म होती जा रही है। रिडिक जानता है कि अगर वो सही रफ्तार से हरकत ना करे तो वो शदीद गर्मी का शिकार हो सकता है। इसी दौरान कुछ दूसरे कैदी भी उसके साथ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सुरंग से बाहर निकलते हैं उन्हें सामने एक वसी और सुनसान सहरा नज़र आता है। ये सिरिमेटोरिया का बैरूनी हिस्सा है। ज़मीन जलती हुई महसूस होती है और हवा भी गर्म हो चुकी है। सूरज आसमान में तेज़ी से बुलंद हो रहा है। अब रिडिक और दूसरे कैदियों को जल्दी से इस इलाके को अबूर करना होगा। वो सब एक महफूज जगह की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं
जहां सूरज की बराह रास्त रोशनी नहीं पहुंचती। ये दौड़ इंतहाई ख़तरनाक होती है। कुछ कैदी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। रिडिक अपनी ताकत और बर्दाश्त के ज़रिए मुसलसल आगे बढ़ता है। इसी दौरान एक और हैरान कुन वाक़या पेश आता है। आसमान पर नेक्रोमोंगर्स की जहाज़ ज़ाहिर होने लगते हैं। उनकी फ़ौज सिरिमेटोरिया पर पहुंच चुकी होती है। वो रिडिक को तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका है कि फरियान है और फरियान वही नस्ल है जिससे लॉर्ड मार्शल को खतरा है। नेक्रोमोंगर्स के सिपाही ज़मीन पर उतरना शुरू कर देते हैं। अब रिडिक के सामने दो खतरे हैं, शदीद गर्मी और नेक्रोमोंगर्स की फौज। रिडिक और बाकी कैदी एक बड़े पथरीले इलाके तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां साया मौजूद होता है। यहाँ दर्जा हरारत निस्बतन कम होता है, मगर ये जगह ज़्यादा देर महफूज नहीं रह सकती क्योंकि नेक्रोमोंगर्स फौज तेज़ी से करीब आ रही होती है। इसी दौरान रिडिक का सामना दोबारा टोम्स से हो जाता है। टोम्स अभी भी उसे पकड़ने के लिए तैयार है। इन दोनों के दरमियान एक और ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होती है। रिडिक अपनी महारत और ताकत से टोम्स को शिकस्त दे देता है। टोम्स इस बार बमुश्किल जिंदा बच पाता है। रिडिक समझ जाता है कि अब सूरत हाल बहुत तब्दील हो चुकी है। नेक्रोमोंगर्स पूरी कायनात पर कब्जा करने के लिए निकल चुके हैं और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पेशगोई के मुताबिक वही उनकी सल्तनत के खात्मे का सबब बन सकता है। इसीलिए रिडिक फैसला करता है कि अब वो सिर्फ भागता नहीं रहेगा, वो इस जंग का सामना करेगा। रिडिक खुफिया तौर पर शहर में दाखिल होता है। वो जानता है कि अगर उसे इस जंग को ख़त्म करना है तो उसे सीधा लॉर्ड मार्शल का सामना करना पड़ेगा। लॉर्ड मार्शल ने हेलियन प्राइम के सबसे बड़े महल को अपना हेड क्वार्टर बना लिया होता है। ये महल इंतहाई महफूज होता है और हर तरफ नेक्रोमोंगर्स सिपाही खड़े हैं। इन सिपाहियों का मानना है कि लॉर्ड मार्शल एक ऐसा लीडर है जो मौत को भी शिकस्त दे सकता है। इसी वजह से वो उसके लिए मरने को भी तैयार रहते हैं। रिडिक खामोशी से महल की तरफ बढ़ता है। वो अपने दुश्मनों को चुपके से ख़त्म करना चाहता है ताकि किसी को उसकी मौजूदगी का पता ना चल सके। यहाँ फिल्म की कई एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ रिडिक अपनी गैर मामूली महारत से सिपाहियों को शिकस्त देता है। जब रिडिक महल के अंदर पहुँचता है तो उसे एक ऐसा मंजर नजर आता है जो उसे गुस्से से भर देता है। कैरा अब नेक्रोमोंगर्स के कब्जे में है। लॉर्ड मार्शल ने उसे जहरी तौर पर तोड़ने की कोशिश की है ताकि वो नेक्रोमोंगर्स बन जाए। कैरा पहले जैसी नहीं रही, वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो चुकी है। उसके अंदर गुस्सा और नफरत भरी हुई है। रिडिक उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि वो कौन है, लेकिन कैरा अब बदल चुकी होती है। वो रिडिक पर ही हमला कर देती है। कैरा को लगता है कि नेक्रोमोंगर्स की ताकत के साथ वो ज़्यादा ताकतवर बन सकती है। इसी दौरान लॉर्ड मार्शल सामने आ जाता है। वो एक अजीब और खौफनाक शख्सियत का मालिक है। उसके पास ऐसी ताकत है जिसकी वजह से वो आम इंसानों से ज़्यादा तेज़ हरकत कर सकता है। फिल्म में बताया जाता है कि लॉर्ड मार्शल आधी रूहानी और आधी जिस्मानी ताकत रखता है। इसी वजह से इसे शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। लॉर्ड मार्शल रिडिक को देखकर मुस्कुराता है। वो जानता है कि यही वो शख्स है जिसके बारे में पेशगोई की गई थी। एक कदीम पेशगोई के मुताबिक फरियान नस्ल का एक शख्स लॉर्ड मार्शल को शिकस्त देगा। रिडिक उसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। जब रिडिक और लॉर्ड मार्शल के दरमियान लड़ाई शुरू होती है तो कैरा भी इसमें शामिल हो जाती है, लेकिन अचानक सूरत हाल बदल जाती है। कैरा को एहसास होता है कि नेक्रोमोंगर्स ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है और रिडिक को बचाने की कोशिश करती है। इसी दौरान एक ख़तरनाक हमला होता है और कैरा शदीद ज़ख्मी हो जाती है। कैरा ज़मीन पर गिरती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांस रुक जाती है। रिडिक के चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ नज़र आता है। कैरा की मौत रिडिक को मज़ीद ताकतवर और ख़तरनाक बना देती है। अब रिडिक और लॉर्ड मार्शल के दरमियान असल लड़ाई शुरू होती है। ये फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीन है।
لارڈ مارشل اپنی غیر معمولی رفتار سے حملہ کرتا ہے۔ وہ اتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے کہ عام انسان اس کی حرکت کو دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن ریڈک بھی ایک عام انسان نہیں ہے۔ وہ فریان نسل کا آخری جنگجو ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے، تلواروں اور طاقتور حملوں کا تبادلہ۔ لارڈ مارشل کئی بار ریڈک کو شکست دینے کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن ریڈک ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ آخرکار ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب ریڈک موقع دیکھ کر لارڈ مارشل پر آخری حملہ کرتا ہے۔ یہ حملہ انتہائی تیز اور مہلک ہوتا ہے۔ لارڈ مارشل زمین پر گر جاتا ہے۔ جیسے ہی لارڈ مارشل مر جاتا ہے، نیکرومونگرز فوج حیران رہ جاتی ہے۔ ان کے قوانین کے مطابق اگر کوئی شخص لارڈ مارشل کو شکست دیتے تو وہی نیا لیڈر بن جاتا ہے۔ نیکرومونگرز فوج فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ریڈک کو اپنا نیا لیڈر مان لیتے ہیں۔ ریڈک خود بھی حیران ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی نیکرومونگرز فوج کا لیڈر بننے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ فلم کے آخر میں ریڈک نیکرومونگر سلطنت کے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے ارد گرد پوری فوج کھڑی ہوتی ہے۔ وہ سب اس کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ ریڈک کے چہرے پر عجیب سا سکون اور خاموشی ہوتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی بھاگتے ہوئے گزاری ہے، لیکن اب وہ ایک ایسی سلطنت کا حکمران بن چکا ہے جسے پوری کائنات خوف کھاتی ہے۔